Hello everyone. In the previous video, we understood the unit circle and we found out that the values of sine and cos functions for any angle can be found out very easily using that unit circle for some particular angles. But our uh, discussion was only restricted to sine and cos trigonometric ratios. What about the other trigonometric ratios? So today we are going to talk about that. Now, if you remember from the last class, the unit circle, which I draw, it was something like this. Okay, so let's focus on this unit circle which we have over here, and we know uh, what is the meaning of all the terms over here. Only that angle is x over here. So if I want, I can change that angle to theta as well. Okay, so I can take the angle as theta. Now if I ask you in triangle POM, in triangle POM, angle PMO is equal to 90 degree, right? Because we drew perpendicular from point P to the x-axis PM, whose length was B. That's basically the y coordinate of point P. And the x coordinate of point P is OM, which is A. Now, if I ask you what is sine theta in this diagram, in this triangle POM? So sine theta is opposite upon hypotenuse. So B by 1. What is cos theta? Cos theta is adjacent upon hypotenuse, which is A by 1, which is A. This is B. What is tan theta? Tan theta is opposite upon adjacent, that is B by A. Cot theta, reciprocal of tan theta, adjacent upon opposite, A by B. What is sec theta? Sec theta is reciprocal of cos theta, hypotenuse upon adjacent, 1 by A. And what is cosec theta? Cosec theta is reciprocal of sine theta, so hypotenuse upon opposite, so 1 by B. So as you can see, not only sine and cos, but all the trigonometric ratios for any particular angle can always be represented in the form of A or B or A and B both. All the trigonometric ratios. Or if you elaborate it more, you can understand that sine, cos, sec and cosec can be represented either in the form of A or B, and tan and cot can be represented in the form of A and B both. So what is this A and B? A and B are the coordinates of point P. What is point P? Point P is a moving point. Now we have a fantastic uh, idea, that is sign convention. Do you remember sign convention? Sign convention for Cartesian system. What is sign convention? So basically what we have done is we have given the quadrants 1, 2, 3, 4. You remember the quadrants name, right? These quadrants have been given certain signs on the basis of the signs of x and y coordinates in them. For example, the first quadrant has been given the sign plus plus. The second quadrant has been given the sign minus plus. Third quadrant minus minus, and fourth quadrant plus minus.
Now these are essentially the sign of A and B. So basically, if you know the signs of A and B, you can find the signs of these trigonometric ratios in particular quadrants. For example, since A and B both are positive in the first quadrant, since A and B both are positive in the first quadrant, the coordinates of point P, which is A and B, x coordinate and y coordinate, both will be positive in the first quadrant. What do you mean by first quadrant? That means OP, if it moves from 0 to 90, OP will be in first quadrant. This angle theta will be in first quadrant. Acha, in first quadrant, what will be the value of this angle? In quadrant 1, in quadrant 1, theta will be greater than equal to 0 degree and smaller than equal to 90 degree. In quadrant 1, theta will be greater than equal to 0 degree and smaller than equal to 90 degree. Okay, so if that is the case, then we can say that A and B, A comma B, both will be positive. Both will be positive in the first quadrant. Means when your angle is acute angle, both A and B will be positive. Now I just told you that your trigonometric ratios sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta can be represented in the form of either A or B or both. And one of them or both of them, if they are positive, the values of A and B I'm talking about, then these trigonometric ratios, they all become positive for any angle theta which is an acute angle. All of them become positive. All of them become positive when theta is between 0 to 90. When theta is between 0 to 90, including 0 and 90, all these values become positive. Yes, sometimes it's possible that certain values are not defined at 0 or 90. That is possible. But if it is defined, then it will be positive. Certainly it will be positive. ठीक है, समझ में आया तुमको मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं. तो मैंने अपना जो डिस्कशन था, जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, मैं हम लोग ने सिर्फ फोकस किया था साइन और कॉस की वैल्यूज पे, अलग अलग वैल्यूज पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंड बियॉन्ड. तो हमने ये देखा था कि साइन और कॉस की वही वैल्यूज, वही 5 वैल्यूज से हम खेल रहे थे. 5 वैल्यूज जो हमने पढ़ी. कौन सी 5 वैल्यूज? साइन 0 के लिए तुम अपना पाम देखोगे ना, अपने पाम की 5 फिंगर्स को देखोगे तो यू विल नो दोस 5 वैल्यूज. साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90. वैसे ही कॉस की 5 वैल्यू. यही 5 वैल्यू पूरे यूनिट सर्कल में हमें दिखी थी. सिर्फ उसकी साइन प्लस या माइनस हो रही थी और उसका रिलेशन चेंज हो रहा था, उसकी पोजीशंस चेंज हो रही थी, जो हमने वो यूनिट सर्कल वाले फिगर में लास्ट टाइम देखा. आई होप तुमने वो डायग्राम बना के रखा हो. ठीक है, तो अगर साइन और कॉस की वही 5 वैल्यूज पूरे सर्कल पे रिपीट होती है, तो टैन, कॉट, सेक और कोसेक की भी तो वही वैल्यूज रिपीट होती रहेगी पूरे सर्कल. सिर्फ क्या होगा, उनकी साइन चेंज होगी. सो आज का जो टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो यहां पे वो लोग ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो सारे ए बी या ए एंड बी दोनों के टर्म्स में है, और ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे. तो एक चीज नोट कर लेना प्लीज, ये सारी चीजें अब तुमने नोट की होगी अब तक.
ये भी लिख लेना कि ऑल द टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा। मैंने यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक की है, मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 90 लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल टू नहीं आता है, बट फिर भी अगर वैसे लिखते भी हो तो कुछ गलत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है वो पॉजिटिव का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, बट टेक्निकली देखा जाए तो 90 और 0 पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो डिफाइंड नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ये इक्वल टू साइन नहीं बनाएंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, अब सही है ये। नाउ इट इज टेक्निकली करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे नहीं, लास्ट लेक्चर में जो तुम्हारा डिस्कशन था, दैट वाज of course we ventured into some uncharted territory and we understood के कैसे ये रिलेशन साइन और कॉस के किसी भी एंगल के लिए तुम बना सकते हो, मतलब तुम पता लगा सकते हो। इफ यू जस्ट नो, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द फर्स्ट quadrant, then you can find the value of sine and cos for other quadrants as well and beyond that। ठीक है, ये हमने पता लगाया। अब हम लोग क्वाड्रेंट वाइज सिर्फ साइन और कॉस नहीं लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें। तो हम चले जाते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में वी नो दैट इफ यू सी दिस फिगर, सेकेंड क्वाड्रेंट में इफ यू सी दिस फिगर, पॉइंट पी दिख रहा है तुमको? ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, ये जो पीएम है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, वो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो ओ एम है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। सी, पी एम मतलब जो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है वो बी है, और ओ एम जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस ए है। तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा बी। क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा बी। अब बी तो पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स जो बी बाय वन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो, आई विल जस्ट हाईलाइट ओवर हियर, साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ओनली बी, बी बाय वन। हमने जो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े थे, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले वही रहेंगे, सिर्फ ए और बी की साइन चेंज हो जाएगी। सो वी विल बी एबल टू डिटरमाइन कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। कॉस क्या हो जाएगा? ए बाय वन नेगेटिव हो जाएगा। टैन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बाय नेगेटिव, बी बाय ए नेगेटिव। कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, मतलब साइन कोसेक सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं बिटवीन 90 एंड 180। बिटवीन 90 एंड 180 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम देखोगे तो दोनों एक्स और वाई मतलब ए और बी दोनों नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा क्योंकि दे आर जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि टैन एंड कॉट इज द रेशियो ऑफ बी बाय ए एंड ए बाय बी विच इज द रेशियो ऑफ टू नेगेटिव्स विच मेक्स अ पॉजिटिव। सो टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन सेक और कोसेक वापस नेगेटिव ही रहेंगे। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बिटवीन 270 एंड 360, तो यहां पे ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के बता सकता हूँ पी के कोऑर्डिनेट्स, विच इज माइनस ए कॉमा माइनस बी एंड ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, ये सारे उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो उसके हिसाब से वी कैन फाइंड आउट दैट a is positive and b is negative, so sine will be negative but cos will be positive, and tan and cot both will be negative, tan and cot both will be negative, but
sec will be positive because cos is positive and cosec will be negative. मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को छोड़ के सब नेगेटिव है, cos और sec पॉजिटिव। ये उसका साइन कन्वेंशन है। सो ये एक टेबल बन गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि चार क्वाड्रेंट और चारों में साइन, ये कैसे याद रखना है इसको? तो नीचे देखो एड टू मेमोरी लिखा है, और भी एक मैं तरीका बताऊंगा, बट पहले ये एड टू मेमोरी देख लो क्या है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। In second quadrant, sine and cosecant are positive. In third quadrant, tangent and cotangent are positive. In fourth quadrant, cosine and secant are positive. याद रहेगा? नहीं रहेगा याद? और एक तरीका बता दूं। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल का मतलब ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव। सी, साइन एंड कोसिकेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो यू रिमेंबर साइन। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि साइन और कोसेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां पे आ गया एस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स कॉट भी रहेगा, तो यहां पे आ गया टी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है। कोसाइन मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पे आ गया सी। ए एस टी सी, इसको एक निमोनिक बना लो। एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी याद रख सकते हो? एड शुगर टू कॉफी में ये पूरा टेबल तुम्हारा रेडी हो जाएगा। मतलब तुम्हें ये पूरा चीज अलग से, जो ये अलग अलग से जो बनाया ना यहाँ पे, इस ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन हर एक क्वाड्रेंट में हर एक एंगल के लिए कितनी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो तुम इससे ही याद कर सकते हो। एड शुगर टू कॉफी। या फिर और एक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। अब तक तो कैलकुलस तुम्हारा फेवरेट बन चुका होगा। सो ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, ASTC, जो भी तुम्हें याद रहता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। अच्छा, ये भी, ये सिंपल है, ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट एस, एस का मतलब साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद रहेगा। करेक्ट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें साइन कन्वेंशन तो पता चल गई, क्वाड्रेंट वाइज, जो कल हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे यूनिट सर्कल को देख के, कहाँ पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। हाँ ठीक है, वैल्यूज तो वही रिपीट कर रही है। वो वैल्यूज के रिपीट करने में भी एक पैटर्न है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला जो इश्यू था, जो कल के यूनिट सर्कल के वीडियो में तुमको मैंने बात की थी, वो इश्यू तो रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे और एक दिया है नेमोनिक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो तुम्हें जैसे याद रखना है कर सकते हो। अच्छा, आप कुछ टेक्निकल स्टफ आ चुका है, सो प्लीज नोट कर लेना इसको, नोट्स ले लेना इसकी, बिकॉज ये चीज हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो टेक्निकल स्टफ है, बट ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स पे तुम्हें काम आएगा। मतलब अगर ये नॉलेज तुमने मेमोरी में डाल दिया, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो क्या होगा पता है? डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें अगर ये नॉलेज है तुम्हारे पास लिमिटिंग वैल्यूज का, डोमेन का और रेंज का, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो तुम
वो उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। जनरली हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये सब में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, तो ऐसा मत करना। फॉर्मूले तो याद करने ही है, उसके बिना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल आइडेंटिटीज देखने जाओगे तो कुछ 27 या कुछ है, ठीक है, 27 या 20, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। जो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे ना, जब डिराइव करेंगे सारी आइडेंटिटीज, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी भी आइडेंटिटीज जो कंपाउंड फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, ये सब आने वाला है अभी, और मतलब पूरा चैप्टर तो अभी बचा है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो उधर आइडेंटिटीज जो आएगी, फॉर्मूले जो आएंगे, उसका वो अलग से याद करने ही पड़ेंगे तुम्हें, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये याद रखो कि जो फॉर्मूले हैं दे आर एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, इवन नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में भी। मतलब दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में जब ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है, तो विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट गो अहेड। ठीक है, अभी हम लोग डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं 12th के लिए। तो डेरिवेटिव्स में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का एक अलग से सेक्शन है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट ये जो लिमिटिंग वैल्यूज या फिर ये डोमेन और रेंज है, ये तुम्हें काफी जगह पे हेल्प करेगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो हमने जो यूनिट सर्कल बनाया था, दैट इज सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, उसमें जो ए और बी की वैल्यू हमें मिली थी वो क्या थी। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये सर्कल में, इसमें हाइपोटेनियस हमेशा 1 था। ये जो ओपी है हाइपोटेनियस, इट वाज ऑलवेज 1 इन एनी केस। कोई भी सर्कल ले लो, सॉरी कोई भी ट्राइंगल ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, कोई भी ट्राइंगल ले लो, hypotenuse की वैल्यू was always equal to the radius of this unit circle which was 1, that is unit। और हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, पीएमओ की कोई भी पोजीशन ले लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ए और बी हमेशा हाइपोटेनियस से छोटे ही रहेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, ऑपोजिट और एडजेसेंट, परपेंडिकुलर और बेस, इफ यू कैन कॉल इट। Perpendicular and base are never greater than hypotenuse and hypotenuse is 1। तो यही वो लोग बोल रहे हैं कि ये यूनिट सर्कल के अंदर जो ए और बी की वैल्यू है, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस है, हाँ वो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, लेकिन उनका जो मॉड्यूलस है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। अब तुम पूछोगे सर ये इक्वल टू 1 कब होता है, स्मॉलर देन 1 तो ठीक है, इक्वल टू 1 कब होता है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि बेटा एक पॉइंट हमने लिया था, इफ यू रिमेम्बर, वो पॉइंट सपोज हम लोग यहां पे लेते हैं, यहां पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपी, दिस विल बी ओपी। तो कैन यू टेल मी कि पॉइंट पी का भी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा 0,1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए 0 है और बी 1 है। ठीक है, अगर पॉइंट पी की पोजीशन में यहां पे लेता हूं, यहां पे, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,0। अब मुझे बताओ कि मॉड ऑफ ए कितना होता है 1 और मॉड ऑफ बी 0। यहां पे मॉड ऑफ ए कितना होता है, मॉड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मॉड ऑफ ए होता है 0 और मॉड ऑफ बी कितना होता है 1। मतलब कभी कभी ए और बी की वैल्यू 1 भी, मतलब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बट 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इससे और कुछ चीजें हमें समझ में आती है, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी।
है ना। साइन थीटा क्या था, बी था, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। साइन थीटा बी था, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, साइन थीटा बी और कॉस थीटा ए। ठीक है, बाकी सारे रेशियोज तो हम पता लगा सकते हैं। तो साइन थीटा अगर बी है और कॉस थीटा अगर ए है, तो हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर b की वैल्यू, मॉड ऑफ b की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू 1 रहेगी, तो इसका मतलब है b तो साइन थीटा है, तो b की जगह साइन थीटा डाल दूं, तो मॉड ऑफ साइन थीटा विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब कोई भी नंबर को अगर मॉड से बाहर निकालो, तो हम लोग उसकी जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसकी, उसको प्लस और माइनस के बीच में काउंट करते हैं। मतलब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस और प्लस एक्स और माइनस एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स, है ना। प्लस माइनस एक्स, दैट मीन्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, राइट। तो हमेशा याद रखना, ये तो सीधी सीधी वैल्यू थी और बीच में इक्वालिटी की साइन थी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा है कुछ कि मॉड ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, देन याद रखना कि x की वैल्यू 1 से इक्वल या फिर स्मॉलर रहेगी और -1 से ग्रेटर या फिर इक्वल रहेगी। मतलब x -1 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि यह मॉड था और मॉड हटने पे हमें प्लस माइनस एक्स मिलता है। ठीक है, तो x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में रहेगी। ये इनइक्वालिटी का और मॉड का एक रिलेशन है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मॉड ऑफ साइन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1 रहेगा, तो साइन एक्स की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, सिंस साइन एक्स इज न्यूमेरिकली स्मॉलर देन इक्वल टू 1, therefore cosec x will always be greater than equal to 1, because cosec x is the reciprocal of sin x। sin x क्योंकि न्यूमेरिकली हमेशा 1 से छोटा या इक्वल होता है, कोसेक भी 1 से इक्वल होगा लेकिन छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। सो कोसेक की वैल्यू 1 से शुरू होगी, जहां पे साइन खत्म होगा वहां पे कोसेक शुरू होगा। क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। सपोज साइन की एक वैल्यू है, लेट्स से साइन 30। ठीक है, साइन 30 है 1/2। तो कैन यू टेल मी कोसेक 30 क्या होगा? कोसेक 30 विल बी 1/sin 30, दैट इज 1/1/2 विच इज 2। देखा तुमने? ठीक है, तो कोसेक 30 2 निकला, मतलब 1 से बड़ा। तो जस्ट इमेजिन, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कोसेक सॉरी साइन 45, साइन 60, तो क्या होगा, कोसेक की वैल्यू उतनी चेंज होती जाएगी एंड इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोसेक की सबसे छोटी वैल्यू 1 से छोटी होती है, आई एम सॉरी 1 होती है, आई एम सॉरी। कोसेक की सबसे छोटी वैल्यू 1 होती है, कोसेक की सबसे सबसे छोटी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है और कोसेक की बाकी सारी वैल्यूज 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, सो इसमें हमें ये समझ में आता है, ये टॉपिक में, कि लिमिटिंग वैल्यूज क्या है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे हम कॉस की भी बात कर सकते हैं। देखो, कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इज ए एंड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कॉस एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1, जस्ट लाइक साइन। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि cos x कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, सो sec x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। sec की वैल्यू 1 से शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, a और b, ये a और b क्या है, a और b हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं,
यूनिट सर्कल में ए और बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, और ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो a बाय बी और b बाय ए, ये भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज अटेन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज a बाय बी एंड b बाय ए बाय बी इज tan x एंड b बाय a इज cot x। तो a by b and b by a, if they can have any numerical value, that means tan x and cot x can have any numerical value। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारी रेंज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज क्या है। हमने जस्ट साइन की, कोसेक की, कॉस की, सेक की, टैन की और कॉट की रेंज ढूंढ ली। लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। इफ नॉट, पॉज द वीडियो, रिवाइंड, गो बैक, नोट इट डाउन। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। As we have just observed that sin x always lies between -1 and 1, cos x always lies between -1 and 1, both included. ठीक है, the domain of y is equal to sin x and y is equal to cos x is R. R मतलब set of any real number. डोमेन का मतलब क्या होता है, x। डोमेन का मतलब होता है x। x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं मैं। देखो, तुम बोलोगे सर x तो डिग्रीज में होता है, मैं बोलूंगा x रेडियंस में भी तो होता है। जैसे तुम बोलोगे सर x 90 डिग्री है, तो इसको कौन सा नंबर ले, मतलब रियल नंबर है या क्या है। ये कोई नंबर नहीं है, डिग्रीज अलग चीज है। इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखो π/2 रेडियंस। π/2 is a number. π/2 in numerical form, it is approximately equal to 3.14 divided by 2. Approximately it is 1.57 approximately। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर x की जगह पे हो सकता है। मैंने तुम्हें बताया, यूनिट सर्कल जब हमने पढ़ा था तो यूनिट सर्कल में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम थीटा को जो 10th क्लास में 0 to 90 ले रहे हो ना, उसको अब छोड़ दो, क्योंकि थीटा कैन बी एनीथिंग वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू बी। इट कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और बियॉन्ड एंड इवन नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो x है, मतलब जो तुम्हारा एंगल है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो डोमेन इज x, एंगल इज द डोमेन। साइन थीटा में डोमेन क्या है हमारी, थीटा। या साइन x में डोमेन क्या है, x। तो ये x कोई भी एंगल हो सकता है। इसका मतलब द डोमेन ऑफ साइन x एंड cos x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम सिर्फ साइन और cos की बात कर रहे हैं, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात करूंगा मैं, बट पहले तो साइन और cos को समझ लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हमने समझा कि थीटा कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एंगल डालो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें साइन x और cos x की वैल्यू मिल जाएगी। बट ये वैल्यू मिलेगी क्या, इसके लिए हमें ये रिलेशन समझना पड़ेगा। So we know that from the knowledge of that unit circle and the values of a and b in that unit circle, we know that साइन और कॉस की जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1। इसका मतलब है जो रेंज है साइन एक्स और कॉस एक्स की, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स -1 +1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब -1 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, सो -1 +1 ऑल द वैल्यूज बिटवीन देम इंक्लूडिंग -1 एंड +1। मतलब ये जो रेंज है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होगी। साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये हमें यूनिट सर्कल के नॉलेज से समझ में आया, क्योंकि साइन इज नथिंग बट, साइन ऑफ एनी एंगल इज नथिंग बट b, cos of any angle is nothing but a and b can never be greater than 1। if it's numerical, never be greater than 1 and never be smaller than -1। so if its numerical value can never be greater than +1 and can never be smaller than -1, so it always lies between -1 and +1। मतलब range of sin x and cos x is -1 and +1। आई थिंक अब ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में। हम लोग
साइन और कॉस के ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एक पार्ट है इस चैप्टर में, लेकिन शायद ये पार्ट थोड़ा लेट आता है, लेटर आता है, इसलिए इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ग्राफ के बारे में शायद फंक्शंस के जब ग्राफ हम पढ़ रहे थे तो थोड़ी बहुत बात की थी, डिटेल में मैंने बात नहीं की थी। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब कॉम्प्लिकेशंस आता है तुम्हारे कोसेक और सेक में। क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज लिटिल ट्रिकी, थोड़ा ध्यान देना। देखो, कोसेक एक्स, व्हाट इज कोसेक एक्स? कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, राइट? डोमेन और रेंज ढूंढनी है हमें कोसेक एक्स की। अब देखो, कुछ भी हो जाए, कोसेक एक्स की जो डोमेन है, मतलब ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स कोई भी वैल्यू अक्वायर कर सकती है। ये वैल्यू कोई भी, ये एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे एक्स की जगह पे हो सकता है, बस सिर्फ पाई नहीं हो सकता, पाई या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिखता हूं, इन दिस केस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यही यहां पे लिखा हुआ है, बट मैंने और एक एम्फेसाइज किया है इसको कि एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता। तुम बोलोगे क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी देर ना कॉसेक एक्स को भूल जाओ और कॉसेक एक्स किससे इक्वल है उसको देखो। कॉसेक एक्स इज नथिंग बट 1/sin x, और 1/sin x में x की वैल्यू अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होती है तो क्या होता है पता है? हमें क्या मिलता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये कल ही हमने देखा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में। ये सब की वैल्यू कितनी होती है? 0। इवन साइन 0, उसकी भी वैल्यू 0 होती है। मतलब व्हेन x इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और व्हेन x इज 0, वी गेट 1/sin x एज 1/0, क्योंकि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 0, ये सब 0 होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड कब हुआ? कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड तब हुआ जब एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ली। अब ये अगर तुम यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि कोसेक एक्स इज नथिंग बट 1/sin x। तो बेसिकली x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। तुम्हारा जो थीटा है, तुम्हारा जो एंगल है, जो x है, जो डोमेन है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है फॉर द फंक्शन कोसेक x, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। So any real number except integral multiples of pi is the domain of cosec x. लेकिन रेंज क्या होगी cosec x की? अब ये हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि cosec x की न्यूमेरिकल जो रेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। न्यूमेरिकल रेंज, अगर उसकी न्यूमेरिकल रेंज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब वहां पे प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हम, मतलब उसकी जो वैल्यू है प्लस माइनस को छोड़ के वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि रेंज y होती है एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? बट y कैन ऑलवेज, y being always greater than 1 numerically also tells you that y can also be smaller than equal to -1, मतलब -1 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है y की। सिर्फ जो y है कोसेक के टर्म्स में, कोसेक x के केस में जो रेंज है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड -1 या -1 एंड 1। हमेशा -1 या उससे छोटी वैल्यूज
या फिर 1 या उससे बड़ी वैल्यूज होगी रेंज, किसकी रेंज? कोसेक एक्स की रेंज। ठीक है, समझ में आया? ये क्यों है ऐसा? बिकॉज कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स जिसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, अगर तुम उसका रेसिप्रोकल करो, मैंने तुम्हें बताया था जैसे साइन 30 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? 2। समझा? तो कभी भी कोसेक एक्स की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी या -1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब -1 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकती, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोसेक एक्स की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन -1। ये उसकी रेंज है, किसकी? कोसेक एक्स की। थोड़ी अजीब है, मुझे पता है, डोमेन और रेंज थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्स की जगह पे कोई भी नंबर में डालू तो मुझे आंसर नहीं मिल सकता। एक्स की जगह मुझे कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं मैं, लेकिन जीरो या पाई के कोई भी मल्टीपल्स में नहीं डाल सकता, बिकॉज दैट मेक्स कोसेक एक्स, द रेंज ऑफ कोसेक एक्स एज अनडिफाइंड। और जहां पे रेंज नॉट डिफाइंड होती है वहां पे डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, हमने फंक्शंस में पढ़ा हुआ। सिमिलर केस है सेक एक्स का। सेक एक्स का केस भी सिमिलर है, बिकॉज सेक एक्स इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, और हमें पता है कि cos x कहां डिफाइंड नहीं है। अब हम क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, और फिर मैंने बताया क्योंकि साइन उस वैल्यूज पे जीरो हो जाता है, और साइन x अगर डिनोमिनेटर में है एंड 1/sin x अगर cos x है, तो x की भी वो वैल्यूज नहीं हो सकती। तो यहां पे cos x भी डिनोमिनेटर में, sec x के केस में, sec x के केस में sec x इज इक्वल टू 1/cos x, मतलब cos x कभी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी जीरो हो गया मतलब वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो cos x जीरो कब होता है, ये क्वेश्चन है। cos x जीरो होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। मैंने तुम्हें बताया था कल यूनिट सर्कल में, cos x जीरो होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, यूनिट सर्कल वाला वीडियो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर cos x की जगह ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आया x की जगह, तो cos x जीरो हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। इसके लिए x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है sec x के केस में, बट इट कैन नॉट बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इट कैन नॉट बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, इसको याद रखना। x can belong to any real number except odd integral multiple of π/2, because at odd integral multiple of π/2 sec x becomes undefined, because 1 by cos x becomes undefined, right? Because cos x becomes 0। ठीक है, और अच्छा, और एक बात, हमें पता है कि cos x भी -1 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन sec x क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो जस्ट लाइक कोसेक एक्स, जो ऊपर अपने एग्जांपल देखा, जो रेंज ऑफ sec x is that it always, its numerical value is always greater than 1, so it's always smaller than equal to -1 or greater than equal to 1। who? sec x। sec x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा -1 से छोटी या 1 से बड़ी होगी। So y is always smaller than equal to -1 or greater than equal to 1। इसको याद रखना प्लीज। ठीक है, तो ये हो गई रेंज एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ sec x एंड cosec x। इससे पहले हमने क्या किया? डोमेन एंड रेंज ऑफ sin x एंड cos x। 4 डोमेन एंड रेंज हो गई हमारी, 2 बची है, किसकी? tan और cot की। देखो tan क्या होता है? tan हमें पता है उसका जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। क्या डिनोमिनेटर में है? जीरो, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कॉस ऑफ थीटा, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो कॉस कब जीरो होता है? जब थीटा की वैल्यू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होती है। जब थीटा की वैल्यू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होती है तब कॉस जीरो बन जाता है। तो मतलब उसको जीरो नहीं बनाना है, मतलब तुम्हारा जो डोमेन है, मतलब x की जो वैल्यू है वो ऑड इंटीग्रल ऑफ
π/2 नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक योर प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ कोसेक। ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक योर प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ कोसेक, यहां भी डोमेन tan के केस में भी जो डोमेन है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, उसको छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, रेंज क्या होगा? रेंज देखो, साइन और कॉस की वैल्यू, साइन और कॉस की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स है। आई एम सॉरी, साइन और कॉस की वैल्यूज एनी वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड बिटवीन -1 एंड 1। अब -1 और 1 के कोई भी वैल्यूज को अगर तुम डिवाइड करो तो तुम्हें जो कोशंट मिलेगा वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है tan की, वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगी, और इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका एक्सप्लेनेशन हमने कल भी पढ़ा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, कॉट की भी यही बात है, लेकिन कॉट में कॉट का जो फॉर्मूला है दैट इज लिटिल डिफरेंट। सो व्हाट इज कॉट? कॉट इज कॉस अपॉन साइन, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन जीरो कब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर या फिर जीरो के ऊपर। तो हम ऐसे ही अगर लिख दें कि द डोमेन ऑफ कॉट एक्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, perfectly fine, where a n is an integer। तो n जीरो भी होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाए, राइट? नहीं हो सकता, n जीरो नहीं हो सकता। n मतलब n x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, जहां पे n जीरो, 1, -1, 2, -2 ऐसे नंबर्स अगर वो अटेन करता है तो n पाई का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा पाई का, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। सो कॉट, द डोमेन ऑफ कॉट इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, बट रेंज इज एनी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सो द रेंज ऑफ कॉट इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये नोट कर लेना, प्लीज नोट कर लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये डोमेन और रेंज, और इसके ऊपर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे वो इसके ऊपर बने। ठीक है, समझ गया? ओके, ना थोड़ा और डीपर जाएंगे और समझेंगे वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। यूनिट सर्कल के हेल्प से हमें काफी चीजें समझ में आई, और हमें पता है कि जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं ये लोग, दैट इज नथिंग बट द रेंज, variations in the values of trigonometric functions. Whenever you say values of trigonometric function, you're talking about the range of trigonometric functions. And we just found out the range. ठीक है, बट इसमें वेरिएशन क्या है? वेरिएशन मतलब प्लस और माइनस में क्या वेरिएशन? ठीक है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज होता है 0 to 90, तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 1, ये हमने नोट किया। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम 90 to 180, साइन थीटा डिक्रीज होता है 1 to 0। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम 180 to 270, साइन थीटा अगेन डिक्रीज होता है 0 to -1 बन जाता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज होता है 270 to 360, एंड साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ठीक है, तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट में उसमें 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 उसकी जो वैल्यूज है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसमें क्या फर्क आता है। सो ये जो एक टेबल है ये सारी वैल्यूज में जो चेंजेस है वो दिखाता है। अब तुम बोलोगे सर ये पूरा टेबल क्या हमको याद करना पड़ेगा? मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये पूरा टेबल लर्न करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये आइडिया तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए, बट हाँ इसको लर्न करने की डायरेक्ट यूज इसका मैं बोलूंगा कि नहीं है। ठीक है, अगर ये किसी को लर्न होता है तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, ये तो मैं बात
बोलूंगा कि हाँ ये इट इज बेनिफिशियल। अगर ये लर्न है तो तुम्हारा मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें कुछ तो हेल्प कहीं ना कहीं मिलता है, बट इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी कैन एनी टाइम कंसिडर यूनिट सर्कल एंड अंडरस्टैंड के कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या वेरिएशन आता है कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पे, द स्टेटमेंट tan theta increases from 0 to infinity for theta belonging to 0 to 90 means that value of tan theta increases in the interval 0 to pi by 2, that is 90, and assumes arbitrary large positive value as theta increases to pi by 2। pi by 2 पे tan theta infinity हो जाता है, and similar is the case with such similar statements। ठीक है, देन देर आर टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स जो तुम्हें क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। क्लास 10th में या 9th में तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स तुमने जो पढ़े हैं अब तक, 2000, मैं पाई के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। मतलब 0, 30, 45, 60 एंड 90, और उनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इस एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती है उसका टेबल भी हमने बनाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, ये वही चीज वापस ये लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम। थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट गिव्स अस सम आइडिया। We know that all add sugar to coffee, that means in second quadrant sine and cosec are positive। Okay, so the hint which they have given us that theta lies in second quadrant tells us that sine and cosec ratios will be positive, all other ratios will be negative। Let's find them out। So cot theta is minus 12 by 5, see, easily we can find out cot theta is minus 12 by 5, therefore tan theta is the reciprocal of cot theta, which is minus 5 by 12। Okay, then there is a there is an identity of sec square theta, which is 1 plus tan square theta, so 1 plus 25 by 144, which is 169 by 144, therefore sec theta is equal to 13 by 12। Sec theta is equal to 13 by 12। Okay, we'll take plus 13 by 12 or minus 13 by 12. We'll take minus 13 by 12 because theta lies in the second quadrant, and in second quadrant only sine and cosec are positive. So sec theta will be minus 13 by 12. Remember that. If you don't take minus, it will be wrong. Okay, so we got sec theta. So from sec theta, we can find cos theta. So cos theta is the reciprocal of sec theta, which is minus 12 by 13। Cos theta is reciprocal of sec theta, which is minus 12 by 13। Next, we have to find, we have cot, tan, sec, and cos. Now I think we have to find sine theta. So tan theta is equal to sine theta upon cos theta, right? So sine theta is equal to tan theta multiplied by cos theta. Tan theta is minus 5 by 12 and cos theta is minus 12 by 13. Okay, so 12 and minus 12 cuts, so we get 5 by 13 as sine theta. Sine theta is 5 by 13. It is positive because we know that in the second quadrant sine is positive, and we are left with only one because we have got, see, we have got cot over here which was given, we have got tan, we have got sec, we have got cos,
We have got sine. So 1, 2, 3, 4, 5 already we have got. Now we just have to find cosec theta, which is reciprocal of sine theta and which also will be positive 13 by 5. Okay, so this is how you can find all the trigonometric ratios. Very easy. Next question. If theta lies in the fourth quadrant and cos theta is 5 by 13, find the values of sine theta and tan theta and 13 sine theta plus 5 sec theta upon 5 tan theta plus 6 cosec theta. So not a big deal, not a problem in this question. I will just keep it here for you. Okay, so see, theta is lying in the fourth quadrant. So let me give you a hint because I will not solve. You have to solve this. Add sugar to coffee. All students take calculus or after school to college. Okay, so in the fourth quadrant, C, that means cos and sec are positive. So this is a hint that cos and sec will be positive. And since you have got cos, you can easily find sec, which is reciprocal of cos, right? And because you have got cos, you can also find sine, because sine square theta plus cos square theta is 1, and you know the value of cos, so you can find sine. If you find sine, you can find cosec, which is reciprocal of sine. Of course, sine and cosec will be negative. Also, you can find tan and cot, because tan is sine upon cos. You've got sine. Sine by cos is tan, and reciprocal of tan is cot. So you can find all the other trigonometric ratios, but you don't need them. What you need, I'll tell you. You need sine. So sine to you have to find. Tan you have to find. Sec you have to find. And cosec you need to find. तो cot के सिवा सबकी जरूरत है. ठीक है? So please pause the video. Find all the trigonometric ratios which are required here. Put the values in these questions and get the answer. Pause the video and do it, please. Okay, let's check the answer. I hope that you have all done it. So they've drawn the unit circle and all. Not the unit circle, but the quadrants. Okay. So they've found all the sides. Sine theta is minus 12 by 13. Tan theta is minus 12 by 5. Sec and cosec also they have found. Cot is not required. So the first answer is minus 12 by 13 and minus 12 by 5. And the second answer after calculation is minus 2 by 37. If you're getting these answers, then that means you have done it right. Okay, next question. This looks tricky. Prove that sec square theta plus cos square theta can never be less than 2. Sec square theta plus cos square theta can never be less than 2. We don't know any relationship regarding sec and cos being together in square. But let's simplify this if we can. So sec square theta plus cos square theta can be written as, this is a square plus b square, and it can be written as sec theta minus cos theta the whole square, that is a minus b the whole square, plus 2 sec theta cos theta. Okay, now what is the meaning after writing all this? We'll understand. Here, sec theta minus cos theta the whole square, being a perfect square, being a perfect square can never be negative, right? Because it's a square, it cannot be negative. Okay, so this is a positive number,
plus 2 times something. Positive numbers plus 2 times something, right, is always greater than 2. Therefore, RHS will always be greater than 2. If RHS is always greater than 2, because this is positive, plus this is 2 times a product, 2 times a number, and sec and cosec are reciprocal of each other, remember. Sec and cosec are reciprocal of each other, so they eventually cut out. So 2 plus a positive number is always greater than 2. Therefore, sec square theta plus cos square theta will be always greater than 2, will never be smaller than 2. Okay, next question. Next question says that show that no value of sec theta can satisfy the equation 6 sec square theta minus 5 sec theta plus 1 is equal to 0. Now this looks like a quadratic equation in the variable sec theta. So if we take sec theta as x, this becomes a quadratic equation. Okay, so let sec theta is equal to x. So we have 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0, and the value of x will be minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So x is equal to, that is sec theta is equal to minus b. So b is minus 5. So it will be minus of minus 5 plus or minus under root of b square minus 4ac. B square is minus 5 square, which is 25, minus 4ac, 4 multiplied by 6 multiplied by 1. So that is 24 upon 2a, that is 2 multiplied by 6. So x is equal to 5 plus minus under root of 25 minus 24 is 1, the whole upon 12. Okay, so x is equal to 5 plus 1 by 12 or 5 minus 1 by 12. So x is equal to 6 by 12, which is 1 by 2, or 4 by 12, which is 1 by 3. Okay, so we got the value of x. Now, what is x? What is x? X is nothing but sec theta. So sec theta is equal to 1 by 2 or 1 by 3. But do you know the range of sec theta? The range of sec theta is uh, that sec theta is always smaller than equal to minus 1, and sec theta is always greater than equal to 1. So sec theta can never lie between 1 and minus 1, and these two numbers are smaller than 1. So no value of sec theta satisfies the given equation. Therefore, no value of sec theta satisfies the given equation. Although we can solve the equation and get the answer, but this is absurd, right? Sec theta cannot be smaller than 1. It is always greater than 1 or smaller than minus 1. It cannot lie between minus 1 and 1. That is its range, and that is how it exists. Okay, sure. Next question. So these are some, you can say, some trivial question, not like proper formula based question, some trivial question, yeah. But if you have knowledge of trigonometrical ratios, these trivial questions can be taken care of. They are not very difficult trivial questions. Next question is, prove that the equation sine theta is equal to x plus 1 by x is impossible if x is real. Okay, so what do you mean by
sine theta is equal to x plus 1 by x. It means that sine theta is equal to x square plus 1 the whole upon x, or x sine theta is equal to x square plus 1. X sine theta is equal to x square plus 1, or x square minus x sine theta plus 1 is equal to 0. Okay, now they are saying that prove that this equation is impossible if x is real. Now, can x be real? When x is real, we know that when x is real, the discriminant is always greater than equal to 0. The discriminant is always greater than equal to 0. What is discriminant? B square minus 4ac. And this is in the form of quadratic equation, so we can find out whether this is the case or not. Okay, so let's find the value of b square minus 4ac. B square is x square minus x square, which is x square, minus 4 multiplied by a, that is x square, multiplied by c. Wait, I made a mistake. Terrible mistake. B square minus 4ac. See, b is sine theta, minus sine theta. Okay, x, the coefficient of x is b, so minus sine theta. Minus sine theta square is sine square theta, minus 4ac. 4 into 1 into c. 4 into 1 into c is also 1, right? So this is sine square theta minus 4 is always greater than equal to 0. This is an absurd equation. It is an absurd relation. You know why it is an absurd relation? Because sine theta always lies between minus 1 and 1. Its square will always lie between minus 1 and 1. And if you subtract 4 from this value, you will never get a positive number. So it's an absurd relation. So, uh, so therefore we can directly say that sine theta is equal to x plus 1 by x is impossible if x is real. Yeah, it is possible if x is not real. If x is not real, then discriminant is smaller than 0. तब ये possible हो सकता था. But if x is real, then this equation is impossible. Because we know that sine square theta minus 4 can never be greater than 0. Because sine square theta तो खुद 0 और 1, minus 1 और 1 के बीच में है. उसमें से भी अगर 4 माइनस कर दोगे तो तुम्हें पॉजिटिव नंबर कैसे मिलेगा? ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे टाइप के क्वेश्चन है इसमें. If x and y be real, show that the equation sine square theta is equal to x square plus y square upon 2xy is possible only when x and y, x is equal to y, both are not equal to 0. मतलब एक्स वाई तो रियल नंबर है, लेकिन ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होगा जब x और y जीरो नहीं होंगे. x और y या फिर दोनों जीरो नहीं होंगे. तो x और y तो जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि x या y दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. तो फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी. वो तो कभी होती नहीं है नॉट डिफाइंड. साइन 91 होता है, साइन 0 होता है. नॉट डिफाइंड तो कभी होती नहीं है साइन की वैल्यू. मतलब एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते, लेकिन ये हमें प्रूव करना है. शो दैट. ठीक है, ये बोला है. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हमारा इक्वेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा is equal to x square plus y square the whole upon 2xy. ये हमारा इक्वेशन है. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल अपॉन 2xy. अब साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। अगर साइन की वैल्यू को मैंने स्क्वायर कर दिया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, बट साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो ऑलवेज स्मॉलर देन, एक मिनट, मैंने साइन थोड़ा उल्टा डाला है, मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है। 1 से तो बड़ा साइन थीटा होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे होगा 1 से बड़ा, है ना। देखो, फॉर साइन स्क्वायर थीटा टू बी greater than equal to 0, we must have x square plus y square greater than equal to 0 and xy greater than 0। मतलब ये जो वैल्यू है तुम्हारा, जो RHS है, उसका न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, बिकॉज डिनोमिनेटर तो 0 से इक्वल नहीं हो सकता कभी, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, सी नाउ, as I told you that sine square theta is always smaller than equal to 1। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy, जो साइन स्क्वेयर थीटा से इक्वल है, दैट इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल टू 1। दैट इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड साथ साथ में हमें ये भी पता है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी ये इक्वेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन पॉसिबल करने के लिए हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 2xy एंड xy मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0 एंड xy मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये साथ में चलता रहेगा। इसका मतलब है x माइनस वाई द होल स्क्वायर मस्ट बी smaller than 0 and xy must be greater than 0. So x minus y must be smaller than equal to 0 and xy must be greater than 0. इसका मतलब है, एक मिनट, x माइनस वाई द होल स्क्वायर हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये स्मॉलर देन 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू वाई एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों इक्वल है और दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों में से कोई भी 0 से इक्वल तो है ही नहीं डेफिनेटली, क्योंकि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तभी ये दोनों इक्वल भी होंगे और उनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा भी होगा। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया कि तुम्हारा जो x और y है वो इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन 0 से इक्वल नहीं हो सकता है, और वो कोई भी इक्वल रियल नंबर्स हो सकता है, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल होगा। सो दिस इज सम इनइक्वालिटीज व्हिच इज इन्वॉल्वड ओवर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। So they are saying that tan theta plus cot theta is equal to 2. Tan theta plus cot theta is equal to 2. We have to find the value of 10 raised to 100 theta plus cot raised to 100 theta. See, you cannot imagine the values which you will get here, but you can certainly simplify this one. So for simplifying this, write it as tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, which gives you tan square theta plus 1 the whole upon tan theta is equal to 2.
So tan square theta plus 1 is equal to 2 tan theta. So tan square theta minus 2 tan theta is equal to, sorry, plus 1 is equal to 0. Tan square theta minus 2 tan theta plus 1 is equal to 0. So it is of the form a square minus 2ab plus b square, which can be written as tan theta, sorry, not tan square theta, tan theta minus 1 the whole square is equal to 0, which is tan theta minus 1 is equal to 0. So tan theta is equal to 0, and if, sorry, tan theta is equal to 1. Tan theta is equal to 1, and if tan theta is 1, then 1 upon cot theta is also 1, which implies that cot theta is also 1, right? So tan theta and cot theta both are 1. So tan raised to 100, tan raised to 100 theta plus cot raised to 100 theta is equal to tan theta the whole raised to 100 plus cot theta the whole raised to 100. That is 1 raised to 100 plus 1 raised to 100. That is 1 plus 1, which is 2. 1 plus 1 is 2. So the answer will be 2. Let's check. Correct. Next question. Prove that this whole thing is equal to 9 by 8. Now these kind of questions you have done in class 10. So you just have to put the values in LHS of sine 0, cos 30, sine 30 and so on, and solve it and bring it to 9 by 8. If you don't do it, if you skip it, it's okay. If you want to do it, pause the video and do it. I will move ahead. Next, you've got sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. You have to prove that. So what is sine pi by 6? Sine pi by 6 is sine 30. Sine 30 is 1 by 2. So sine square pi by 6 is equal to 1 by 2 the whole square, which is 1 by 4. Cos pi by 3, that is cos 60, is also 1 by 2. So cos square pi by 3 is 1 by 2 the whole square, which is 1 by 4. Then tan pi by 4, right? Tan pi by 4 is 1. Tan 45 is 1, right? So tan square pi by 4 is 1 square, which is equal to 1. So we have got all these values over here: tan square pi by 6, cos square pi by 3, tan square pi by 4. You just have to put the values here and solve LHS and you'll get RHS. Very simple. So you can pause and simplify. Okay, great. Last question. Prove that sine square 30, sine square 45 and sine square 60 are in AP. So what is sine square 30? Sine square 30 is sine 30 the whole square. Sine 30 is 1 by 2. 1 by 2 the whole square is 1 by 4. Sine square 45. Sine 45 is 1 by root 2. 1 by root 2 the whole square is 1 by 2. And sine 60 is root 3 by 2. Root 3 by 2 square, root 3 by 2. Root 3 by 2 square is 3 by 4. So you have to prove that these are in AP. So these three numbers will be in AP only if 1 by 2 minus 1 by 4, which is 1 by 2, is equal to 3 by 4 minus 1 by 2. 3 by 4 minus 1 by 2 will also be, because see the LCM will be 4. So this will be 3 minus 2 upon 4. 3 minus 2 is 2. 2 by 4 is 1 by 2. So since
second term minus first term is equal to third term minus second term. The common difference is 1 by 2. Hence, we can say that these three are in AP. Very simple. Okay, so this part is over. They are saying common difference is 1 by 4. Is the common difference 1 by 4? 1 by 2 minus 1 by 4. Hey, yes. The common difference is, I think the common difference should be 1 by 4, right? Because, yeah, 1 by 4 is adding. So 3 by 4 minus 1 by 2 should also be 1 by 4. Yes, so correct. They are in AP. Anyway, so we have exercise 3C, which has some questions, around 16 questions. Okay, so I'm going to give you this homework, and I'll see you in the next video. So we have completed this part. I hope that you have taken notes, because those will be very important. For one more video, we are going to focus on these basics and then start with the new formulae series, which we are going to focus in class 11th and 12th. Okay, so see you in the next video. Bye bye.